गुड मॉर्निंग। सो कल तक हमने लास्ट कहाँ पे रुके थे हम? वी हैड स्टॉप्ड एट डीपी. वी टॉक्ड अबाउट डिपॉजिटरी, वी टॉक्ड अबाउट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सो बेसिकली लेट्स ट्राई टू गो इन लाइन टुडे. सबसे पहले इफ यू वर टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, यू मस्ट हैव एन अकाउंट. Which three accounts had we talked about? Demat account, trading account and bank account, your saving bank account. Okay, so you have opened that, assume. Now you want to actually trade in the market. You want to actually buy or sell some order. So we need to understand about what do we mean by trade execution. Okay. So for that what happens is trade execution में basically हम क्या बोलते हैं? Buyers and sellers execute their trades using the electronic trading platform. Who provides this electronic trading platform? Tell me. Stockbroker. Okay, and stockbroker will execute this on the stock exchange either through the BSE or through NSE. और कल हमने और एक MCX SX भी पढ़ा था. But two major popular exchanges we already know. Okay. So when we talk about trade execution, a very important system which comes up is open outcry या फिर online trading. ये दो अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं. ओपन आउटक्राई ये ना थोड़ा सा भी बाबा आजम के जमाने का हो गया. हैव यू वॉच्ड गुरु मूवी? अभिषेक बच्चन? नहीं, होमवर्क. ओके, सो देयर वाज दिस अभिषेक बच्चन मूवी गुरु, wherein there is a big trading circle which is shown and there are many brokers who actually just do some actions. वो क्या एक्शन करते हैं वो even I did not understand because I have never seen an open outcry system. But they'll do some actions. So just as an example, if they do such an action, it's like buy. If they're doing this action, it'll be sell. ऐसे numbers दिखाएंगे सर, 100, 200, whatever. So उनके ऐसे अलग अलग एक्शन से buy sell करना पड़ता था. Okay, ये कब की बात रहेगी? When electronic system was there or was not there? Was not there. Okay. So earlier what used to happen? Tell me quickly. If you were to execute a trade, brokers should be present physically in one room. Yes or no? Yes. So earlier, if you have heard about Dalal Street, सुना है कभी है? दलाल स्ट्रीट. वेयर इज दलाल स्ट्रीट? मुंबई. मुंबई में क्या है अभी दलाल स्ट्रीट में? शेयर मार्केट है. कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. द एड्रेस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज दलाल स्ट्रीट. So what used to happen in very early days, there was this street, गली, where all the dalals used to sit. Okay, दलाल मतलब ही broker. That is why that street is called as a Dalal Street. And all these brokers used to actually physically interact with each other. कि this share, अभी I don't know how they used to call out the share. But ऐसे मतलब जोर से चिल्लाते थे. जैसे you can imagine in सब्जी मंडी. आलू 10 रुपए, 10 रुपए, something like that. Reliance 10 रुपए, 10. You can imagine something like that. Okay, that is nothing. But see, now you can easily correlate with me. What is this? Open outcry. Outcry मतलब shout out. Which share you want to buy, which share you want to sell. Okay, but do you think this one exists right now? No, for a simple reason. Why? Tell me. Because right now we talk about what? Electronic trading systems. With electronic trading systems, online trading systems, quickly tell me, brokers ने एक जगह पे physically होने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? नहीं है, because they'll deal with each other directly through the stock exchange. Is this okay? Yes. So trading system में online system आज इंडिया में कहाँ पे अवेलेबल है? तीनों भी stock exchanges में अवेलेबल है. But from day one we have been focusing mainly on only two exchanges, BSE and NSE. Okay. चलो अभी orders क्या होते हैं? Let us understand. There are various types of orders in the market. कौन कौन से ऑर्डर टाइप से देखो. एक आता है मार्केट ऑर्डर, एक आता है लिमिट ऑर्डर, एक आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक आता है गुड टिल कैंसिल ऑर्डर, एक आता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, एक आता है IOC. है भगवान ये क्या है? Wait. We are going to discuss one by one. Don't worry. Have you watched the जुदाई movie? आज मुझे अचानक मूवीज याद आ रहे हैं. जुदाई नहीं देखा है? अनिल कपूर, श्रीदेवी. That was when I was in school. There परेश रावल plays this character, जिसमें उसके ना माथे पे जनरल अपन तिलक जो लगाता है वो क्वेश्चन मार्क रहता है इधर. And he is a person who just goes on asking questions continuously. मतलब बोलता है आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ. कौन सी फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे. क्यों थर्ड फ्लोर पे क्यों नहीं रहते? कितने रूम का फ्लैट है? 4 रूम का. 5 रूम का नहीं लिया? ठीक है. आपके इसमें बालकनी है क्या? नहीं है. टेरेस क्यों नहीं है? जस्ट गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस. सिमिलरली इट इज समथिंग लाइक दिस. ऑर्डर प्लेस करना है. हाँ. कौन सा? बाय सेल बाय. अच्छा सेल नहीं करना है. सेल में कौन सा चाहिए? मार्केट लिमिट क्या? स्टॉप लॉस. अच्छा स्टॉप लॉस. ओके स्टॉप लॉस में कौन सा? स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट. ओ माय गॉड,
इतने orders है, which are the different types of orders. So what we are going to do, इतना confusion create ना करके, one by one, slowly, steadily, we are going to talk about all these types of orders. Okay. So the very first one you need to understand that whenever you are placing an order in the stock market, at least you are this clear in your mind that you want to either buy or you want to sell. इतना तो पता है. So assume today you want to take, let us say you want to buy. कौन सा शेयर बाय करना है आज आपको? एक just as an example, अभी तक fundamental analysis सीखा तो नहीं. ऐसे कौन सा शेयर बाय करना है? TCS. Okay. So you want to buy TCS, Tata Consultancy Services का शेयर बाय करना है आपको. So you can imagine something like this कि आपको open outcry में जाना है या online trading पे जाना है? Online trading में जाना है. So you given your login credentials. Okay, आप आपके account में login करते हो. Account में login करने के बाद it will ask what is the type of order you want to place. इधर आएगा buy या फिर sell. तो obviously what are you going to click? You're going to click buy. Okay, buy click करने के बाद then it further asks which type of order do you want. You want a limit order? You want a market order? Or you want a stop loss order? तीन मेजर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स आपको पता होने ही होनी चाहिए. लिमिट ऑर्डर, मार्केट प्राइस ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर. I'll tell you very simple example for this. Anyone knows roughly what is the current market price of TCS? 2000 के आसपास है, 1000 के आसपास है, 2000 के आसपास है ना? अरे बाप रे इतना 2053. अच्छा ठीक है 2053 ऐसे पूरा पूरा लेंगे अपन. That is the market price of TCS. So now what happens, understand? Very important point. Huh? Do you think bargaining is allowed in stock market? Allowed or not allowed? See, it has to be allowed. Otherwise, girls will not trade in the stock market. There is a mandatory requirement that whenever girls shop, there has to be some level of bargaining. Okay. So you can imagine something like this. We girls are logging into the system, and in the system we see Tata Consultancy Services is trading at 2053. And 2053? We want it at a lower price. So what we say, we want it at, let us say 2040. हमको ये price पे चाहिए. So we are placing which order? Buy order, but we are limiting the price to 2040. Okay. Tell me logically. मैंने 2040 में order डाला, तो seller immediately is he going to sell me at 2040? No, the seller is saying, why shall I sell at 2040? The LTP is 2053. LTP? Last traded price, कल हमने पढ़ा था. Last traded price, अभी एक सेकंड पहले जो प्राइस गया ना वो 2053 में गया है. So quickly tell me, will my trade be executed immediately or I'll have to wait for some time till the price drops to 2040? I'll have to wait for some time till the price drops to 2040. Could there be a possibility कि आज price drop हुआ ही नहीं? Yes, quite possible. ये भी हो सकता है. Price drop होने के बजाय price rise हो गया. In that case, will my order be executed or will remain unexecuted? It will remain unexecuted. Okay till here? Yes. We are going to discuss more about that. ज़्यादा examples लेंगे और भी अच्छे से clear होते जाएगा. Now let us talk about boys example. They log into the market. What is the current market price? 2053. हाँ, okay. ऐसी shopping होता है ना आपका? आप कहीं पे जाते हैं, शर्ट कितने में दिया? 400 ना, हाँ पैक कर दो, खत्म, लड़का आउट ऑफ द शॉप. एंड द मोमेंट वी गो इन 400 100 में मिलेगा क्या? यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं. सो क्विकली टेल मी, व्हेन योर बॉयज आर प्लेसिंग, अच्छा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बॉयज गर्ल्स नहीं आएगा, बट याद रखने के लिए इजी होता है ये. सो वेन एवर वी आर सेइंग व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, व्हाट इज द एलटीपी? 2053. फैंटास्टिक, वी आर रेडी टू बाय 2053. चलो, वॉट एवर इज द करंट मार्केट प्राइस, वी वॉन्ट टू बाय दैट. वी डोंट वॉन्ट टू बार्गेन. Which type of order is that? That is known as a market order. Quick answer चाहिए. क्या इसका immediate execution होगा? Yes or no? Yes, because we are not bargaining only. We are asking what is the market price? 2053. Okay, done. इसको बहुत बार जो typical brokers होते हैं ना, वो बोलते हैं सामने सामने ले लो. सामने सामने मतलब जो सामने आपको भाव दिख रहा है उसके ऊपर परचेस कर लो. We don't want to bargain. Is this okay? So in simple words, if you want to just restore this in your mind. Boy shopping कौन सा है? Market order. Girl shopping? Limit order. Yeah, तो okay. We'll first write down these two terms because stop loss order is a little bit tricky. Okay. So write down the heading as types of orders.
टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स. इसमें पहला कौन सा है? लिमिट ऑर्डर. Tell me, what will we write for the limit order? Investor bargains with the current market price or does not bargain for limit order? Investor bargains and does not offer to buy/sell at current market price. So write down investor bargains. Investor bargains and does not offer to buy, does not offer to buy/sell at what? Current market price. Does not offer to buy/sell at current market price. अच्छा, who can tell me logically? देखते हैं, ये बाय के लिए लिमिट ऑर्डर वाज 2040. व्हाट डू यू थिंक इफ यू वर टू सेल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, व्हाट कुड हैव बीन योर लिमिट प्राइस? उसके हायर ना. सो लेट अस से कुड इट बी 2060? यस. कुड इट हैपन कि आज ये 2060 को टच ही नहीं किया? यस. देन व्हाट विल हैपन? इट विल रिमेन अनएग्जीक्यूटेड. ओके. यस. नेक्स्ट वन इज मार्केट प्राइस ऑर्डर. मार्केट प्राइस ऑर्डर. It is an order where the buyer/seller is ready, buyer/seller is ready to execute their trade. Execute their trade at what? Tell me. At the current market price. At the current market price. Into bracket, just for your understanding, ये with bargaining वाला example है या without bargaining? So if you want to write down for your understanding purpose, into bracket without bargaining. यहाँ तक ओके? कैन वी मूव ऑन? यस. नाउ वी कम टू अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट विच इज नोन एज द स्टॉप लॉस ऑर्डर. सिर्फ हेडिंग लिख के रखना, स्टॉप लॉस ऑर्डर. आई विल डिस्कस दिस. इज दिस ओके? यस. अब क्या होता है देखो, स्टॉप लॉस ऑर्डर. अगेन वैसे देखा जाएगा तो द वर्ड इटसेल्फ सेज द मीनिंग टू सम एक्सटेंट. स्टॉप माय लॉस. ओके. सो व्हाट हैपेंस, लेट अस अंडरस्टैंड. अज्यूम दैट आई बाय अ शेयर एट 200 रुपीज. ओके, कोई भी एक शेयर है, आई एम बाइंग एट 200 रुपीज. क्विकली टेल मी, कैन दिस शेयर गो अप टू 205, 210, 220? पॉसिबल है? पॉसिबल है. नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है. टू व्हाट? 195, 190, 185 आ सकता है नीचे. व्हाई नॉट? बट देन आई एम अ लिटिल बिट स्कैर्ड अबाउट द मार्केट मूवमेंट. अगर मैंने बाय किया है तो कितना भी ऊपर जाने दो, एम आई हैप्पी? मैंने बाय किया है, कितना भी ऊपर जाने दो, एम आई हैप्पी? यस, ऑब्वियसली यस. व्हेन विल आई बी स्कैर्ड? इफ इट इज गोइंग डाउन, आई विल बी स्कैर्ड. ओके. सो व्हाट डू आई से? If this stock goes down and down and down and down to, let us say, 185, and assume that I have bought 100 shares. Okay? 100 shares buy किए, तो बोलो मेरा लॉस कितना होगा एक झटके में? 1500 रुपीज का मेरा लॉस हो जाएगा. I don't want to bear this much loss. I say that my maximum loss bearing capacity is ₹500. मुझे 500 के ऊपर लॉस बेयर ही नहीं करना है, कुछ भी हो जाए. क्या तो क्लियर है? My maximum, I understand you might be saying that why are you keeping a target of loss? People keep target of profit. Am I ideally, ideally am I
thinking that I should get profit, yes. But agar ulta ho gaya, if market conditions turn weak, could I end up into losses as well? Yes, why not? Do you think I am a broker who's going to sit in front of the system from 9:15 to 3:30 continuously? No. So practically भी ऐसे होता है मेरे साथ. That let us say I've bought one share, then मुझे किसी lecture को जाना है. I go to the lecture, I'm packed there for 2 hours. 2 hours में क्या जाने किधर का किधर प्राइस चला जा सकता है? Could that be a very risky situation for the investor? Obviously yes. Okay. So ये risky situation ना हो, इसके लिए हम कौन सा order लगा रहे हैं बोलो फटाफट. हम order लगा रहे हैं of a stop loss. So what will happen? Please understand this very carefully. अगर मेरा maximum loss मुझे 500 को restrict करना है, quickly tell me what should be the price at which I should close my position? 195. How? I hope everyone has understood. 5 rupees per share multiplied by 100 shares. Okay. So what do I do? Understand. At 195, I will place which order? I'll place a stop loss order. यहाँ तक ओके. अब क्या होता है थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे. अज्यूम दिस इज योर प्राइस चार्ट. यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 195 है, यहाँ पे 190 है, यहाँ पे 180 है. ओके. So what will happen? Understand. Where have I bought the share? Tell me quickly. I bought the share at 200. So let us say it is fluctuating and fluctuating. थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, इधर आ गया. The moment it comes here, क्या हो जाएगा? My stop loss is hit. ऐसे बोलते हैं. My stop loss is hit and my order will square off immediately. नई terminology यूज की है. My order will square off. Square off. Square off is exact opposite. Exact opposite मतलब क्या? पहले अगर मैंने बाय किया है तो स्क्वायर ऑफ मतलब ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा. अगर मैंने पहले सेल किया है तो स्क्वायर ऑफ मतलब ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा. इट्स एन ऑपोजिट एक्शन. यहां तक भी ओके. सो क्विकली टेल मी. 200 पे सेल किया था, सॉरी 200 पे बाय किया था. एट बॉट एट 200. द मोमेंट स्टॉक हिट्स 195, माय पोजीशन बोलेंगे इसको. पोजीशन विल बी स्क्वायर्ड ऑफ. अपोजिट पोजीशन लिया जाएगा. स्क्वायर ऑफ किया जाएगा मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो? बाय और सेल, इट विल बी सोल्ड ऑफ. ओके क्लियर. अब इसका फायदा, जबरदस्त फायदा कितना है ये थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं. व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट? टेल मी. कैन द स्टॉक crash and crash and crash and crash even till 182 let us say? Possible है या नहीं है? Yes, why not? Possible है. But then what is my loss? Is it 200 minus 182? That is 18 multiplied by 100, or my loss is fixed at 500? My loss is fixed at 500 because the moment 500 रुपए लॉस हो गया. बात करते. यहाँ तक भी ओके? Yes, right? Tell me what could be the worst scenario जो मेरे साथ हुआ एक बार. Ooh, okay. So if I've put a stop loss order and there is no buyer, अभी actually I've not discussed this concept of upper circuit, lower circuit. So but theoretically if you know this, ऐसे हो सकता है क्या लाइफ में that I want to sell but there is no buyer in the market. Theoretically नहीं, ये practically भी होता है. Okay, so visualize the situation. I'm saying, अरे I want to sell. Buyer say, अरे but we don't want to buy. There is no buyer. I can't see any buyer in the market. This is also possible. So this could be a worse scenario. I know that I have to stop my loss at 500. But stop loss करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Sell करना पड़ेगा. मैं sell करती हूँ मतलब क्या होता है? Obviously सामने से कोई buy कर रहा है ना. The moment I am selling, obviously someone in India is buying my share. But if there is no buyer, will my stop loss get executed or will remain unexecuted? Will remain unexecuted. इस केस में क्या होगा? My loss is increasing and increasing and increasing if the share price is crashing further. Could this happen? Yes, this could happen. Scenario number 1. Scenario number 2. और क्या बुरी चीज क्या हो सकती है जो दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है? Exactly. हम ऐसे बचपन में ऐसे पकड़ा पकड़ी खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे गए ना, ऐसे टच करके भाग गए. वैसे ये शेयर प्राइस नालायक निकला. क्यों? ऐसे गिरते 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 टच किया, इसको सिर्फ टच किया, क्या किया? भाग गया. किधर? ऊपर 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 इन द एयर. अब क्या हो जाएगा? आई बॉट इट एट 200. It has gone up to 215. And my stop loss was hit at 195.
So I could have made a potential profit, but I end up into losses. बहुत बहुत दुख होता है, दर्द होता है ऐसे होने के बाद. I have faced this situation. So from that, I always feel that यार stop loss लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. But ideally yes. It is said that if you are an investor मतलब long time investor, तो अपने stop loss नहीं लगाए to some extent तो भी चलेगा. But if you are a short time trader and investor में फर्क समझते हैं आप? ट्रेडर मतलब शॉर्ट टाइम होराइजन होता है उसका. आज बाय करो, आज ही सेल करो, शायद आज बाय करो, 1-2 दिन में बेच दो, आज बाय करो, मे बी विद इन अ मंथ बेच दो. बट इफ आई एम विद अ पर्सपेक्टिव, आज ले लो, 5 साल 6 साल मेरे को देखना ही नहीं है, ऐसे केस में स्टॉप लॉस की जरूरत है क्या? एज सच नॉट रिक्वायर्ड. इज दिस ओके? तो स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट क्लियर है? थोड़ा थोड़ा या पूरा क्लियर है? एक लास्ट एग्जाम्पल लेंगे so that I can introduce to you one more concept, because अभी तक ट्रिगर प्राइस और एक कंसेप्ट आता है इसमें, ये नहीं लिया मैंने स्टॉप लॉस में. एक बार फिर से चलो, टेल मी क्विकली. आई बॉट अ शेयर एट 500 रुपीज. ओके, माय मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल. अच्छा, मैंने आई हैव बॉट 100 शेयर्स एट 500 रुपीज ईच. माय मैक्सिमम लॉस विच आई एम ओके विथ इज लेट अस से ₹100. मुझे मैक्सिमम लॉस 100 चाहिए, उसके ऊपर मेरे को लॉस चाहिए ही नहीं. So if I plot it on the graph, tell me at what price have I bought it? 500 पे मैंने buy किया है. My maximum loss, how many shares? 100 shares. अच्छा, my maximum loss I should say 1000. थोड़ा तो हाँ. Maximum loss I want is 1000. उसके ऊपर मेरे को loss नहीं चाहिए. So tell me where shall I place my stop loss order at? 490. कैसे 490 समझ में आ गया? 100 शेयर्स है एंड 1000 का मैक्सिमम लॉस है. आई एम रेडी टू बेयर अ लॉस ऑफ मैक्सिमम 10 रुपीज. सो फटाफट बोलो, मैंने कितने पे लगाया स्टॉप लॉस? 490 रुपीज पे मैंने लगाया स्टॉप लॉस ऑर्डर. ये मेरा बाइंग प्राइस था. ओके, टेल मी व्हाट हैपेंड. कुड इट गो अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड क्लोज हियर? तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा. इट विल रिमेन अनएग्जीक्यूटेड. इट विल रिमेन अनएग्जीक्यूटेड. कुछ नहीं होगा उसका. इज दिस ओके? बट व्हाट इज द उल्टा सिनारियो? उल्टा सिनारियो क्या हो गया बोलो? आपने बाय तो किया था, बट इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड इट टचेस हियर, देन एग्जीक्यूट हो जाएगा. आई होप स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर है. पक्का? यस. कैन वी फर्स्ट राइट इट डाउन? यस, राइट डाउन. स्टॉप लॉस ऑर्डर. इट इज एन ऑर्डर. It is an order placed by, it is an order placed by a buyer. It is an order placed by a buyer at a price. At a price. Who can tell me lower than his buying price या फिर higher than his buying price? Lower than his buying price. What is the biggest advantage of this? Tell me. Biggest advantage of a stop loss order is that losses will be limited. Okay, so the biggest advantage of this order, the biggest advantage of this order is that losses will be limited. यहां तक भी ओके? यस. अच्छा, मुझे नहीं लगता आई शुड गो इनटू more details like trigger price. आज first time ये concept किया, maybe tomorrow we'll come back to this discussion जिसमें stop loss में और भी दोस्त, because now understand I've told you what is a stop loss order. Just for your purpose I'm telling this. Stop loss में भी 2 types हो सकते हैं again. Stop loss market order या फिर stop loss limit order. ऐसे अभी पढ़ा है क्या हमने? Market order and limit order. So stop loss के अंदर भी ये दोनों हो सकते हैं वापस. Stop loss market चाहिए या stop loss limit चाहिए.
बट दिस इज अ लिटिल बिट मोर ट्रिकी. सो टुडे आई गेस आज स्टॉप लॉस करेंगे, कल ये स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट में जाएंगे. फिलहाल इतना समझ में आ गया है. चलो विदाउट लुकिंग टू द नोट्स, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वी टॉक्ड अबाउट. व्हिच 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स? लिमिट प्राइस ऑर्डर, मार्केट प्राइस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर. लिमिट प्राइस ऑर्डर, गर्ल शॉपिंग बॉय शॉपिंग, गर्ल शॉपिंग. मार्केट प्राइस ऑर्डर, बॉय शॉपिंग. स्टॉप लॉस ऑर्डर, सो दैट आवर लॉसेस आर लिमिटेड. यहां तक भी ओके? सो अब देखो ये जो हमको एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कराया था, इसमें से अपने को कौन कौन सा आता है? डू वी नो दिस मार्केट ऑर्डर नाउ? यस. डू वी नो लिमिट ऑर्डर? यस. डू वी नो स्टॉप लॉस ऑर्डर? यस. डू वी नो आफ्टर मार्केट ऑर्डर? यस. ये कब प्लेस होता है? 4 o'clock टू नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock. क्यों 9 to 9:15 क्या होता है? प्री मार्केट ओपनिंग. कल एकदम एंड में हमने वो मनी कंट्रोल पे देखा भी ना, प्री ओपनिंग सेशन प्राइस बता रहा था उधर. करेक्ट. सो अभी ये 3 पेंडिंग है. आईओसी, गुड टिल, कैंसल. ओके. अब ये आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट और कैंसल. सिंघम क्या सब मेरे को सिंघम देखा है ना, क्या बोलता है वो? अभी के अभी आता माझी सटकली. अभी के अभी होना चाहिए. अभी के अभी इज व्हाट? आईओसी ऑर्डर. व्हाट इज आईओसी? इमीडिएट और कैंसल. मीन्स व्हाट? If I am placing a buy order, let us say I am placing a buy order at 200 rupees and I place an IOC order, क्या होगा बोलो? वेरी सेम सेकंड या फिर वेरी नेक्स्ट सेकंड अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो बोल दो कैंसल, नहीं प्लेस करना मेरे को. इज दिस ओके? ये कब कोई ऑर्डर प्लेस करेगा आईओसी? व्हेन ही इज इन अ वेरी हरी टू आइदर बाय हिज पोजीशन और आइदर स्क्वायर ऑफ हिज पोजीशन. व्हेन सम ट्रेडर और इन्वेस्टर इज वेरी 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 यू नो एकदम ईगर है कि नहीं यार अभी के अभी हो जाना चाहिए, तो ऑलवेज गो इन फॉर आईओसी. चलो देखते हैं लॉजिकली आंसर कौन कर पाएगा. कौन सा कॉम्बिनेशन जमना चाहिए? आईओसी एज अ मार्केट ऑर्डर कॉम्बिनेशन जमेगा या आईओसी एज अ लिमिट प्राइस जमेगा? ऑब्वियसली आईओसी विद अ मार्केट ऑर्डर. अगर मैं बोलूं कि अभी 200 रुपीज मार्केट प्राइस चलो एंड मैं बोलूं आई वांट टू बाय इट एट 190 अभी के अभी, अरे ऐसा कैसे होगा? करेक्ट. सो लिमिट एंड आईओसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. प्रैक्टिकली, theoretically कुछ भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली लिमिट एंड आईओसी विल नेवर गो हैंड इन हैंड. विच 2 orders कैन गो हैंड इन हैंड? मार्केट प्राइस ऑर्डर एंड आईओसी, दे विल गो हैंड इन हैंड. इज दिस ओके? सो क्विकली राइट डाउन अ वन लाइनर आईओसी ऑर्डर. IOC order. It is an order where the trader wants to immediately execute. The trader wants to immediately execute his buy/sell order. Wants to immediately execute his buy/sell order. आगे एक वन लाइन क्या लिखेंगे? इफ इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली. इफ इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, क्या होगा बोलो? अगर इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो द ऑर्डर विल गेट कैंसल्ड. इज दिस क्लियर? यस. सो अब पेंडिंग वैसे देखा जाएगा तो एक ही है, जीटीसी ऑर्डर. बट जीटीसी फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है. ब्रोकर्स इसको जनरली, all brokers will not allow GTC orders, good till cancel orders. Majority of the brokers will allow GTD order. GTD is good till day. थोड़ा सा समझ लो ये क्या है good till day. We were talking about a case just few minutes ago that right गया क्या ये? Okay, anyways. सो मैंने आपको एक प्राइस बोला था कल, अभी थोड़ी देर पहले, कि लेट अस से द प्राइस इज 200 रुपीज. ध्यान से सुनो, प्राइस इज 200 रुपीज एंड आई पुट अ लिमिट प्राइस ऑर्डर एट 190 फॉर बाइंग. इज दिस ओके? कुड दिस हैपन दैट 200 का मैंने बोला से 200, 210, 220 ऊपर ये नीचे आया ही नहीं? डिड माई ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड और रिमेन अनएग्जीक्यूटेड? अनएग्जीक्यूटेड. कब तक अनएग्जीक्यूटेड रहेगा ये?
till it comes down. Okay, ठीक है. अच्छा, आज आया नहीं ना, लेकिन वो आज इधर तक आया, मैक्सिमम इधर तक आया. It did not touch 190. Then what will happen? Are you able to visualize this? So you can visualize this something like this. ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है. मैंने एक बाय ऑर्डर लगा के रखा है 190 शेयर्स का, सॉरी 100 शेयर्स का at 190 each. You can imagine something like this कि सिस्टम में ऐसे दिख रहा है अभी. I've logged into my account 100 shares at 190 बाय करने के लिए रखा है. अभी तक ये एग्जीक्यूट हुआ है, yes or no? No, अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. एक और कंसेप्ट साथ साथ बता रही हूं, ध्यान से समझ लेना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स विच अ ब्रोकर मेंटेन्स, जो अपने को दिखते हैं इन आवर लॉग इन. टू टाइप्स ऑफ बुक्स. कौन से दो बुक्स होते हैं? एक को बोलते हैं हम ऑर्डर बुक एंड एक को हम बोलते हैं ट्रेड बुक. ऑर्डर बुक एंड ट्रेड बुक. ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वेन एवर आई प्लेस एनी ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज एंटर्ड इन विच बुक? ऑर्डर बुक. ऑर्डर आया है, जरूरी है एवरी ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड? नहीं. इफ द ऑर्डर डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, इट रिमेन्स इन द ऑर्डर बुक. बट इफ द ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड, इट विल ऑल्सो स्टार्ट अपियरिंग इन द ट्रेड बुक. सो ये ऑर्डर तो ये प्लेस हो गया था, ये एग्जीक्यूट भी हो गया. नाउ इट हैज कम इनटू द ट्रेड बुक. हियर विल से ओके बॉट. फैंटास्टिक. ओके, यहां पे क्या आ जाएगा? देखो, बॉट 100 शेयर्स एट व्हाट? लेट अस से एट 190. मेरा लिमिट प्राइस 190 था, 190 पे आ गया. सो क्विकली टेल मी, कैन एनी ऑर्डर डायरेक्टली गो इन ट्रेड बुक? No, it has to be routed through the order book. यहाँ तक okay. Could it be possible that it is routed through the order book and it stays in the order book? Why? Order does not get executed. क्यों? वो प्राइस आया ही नहीं. यहाँ तक okay. So now my question is that ये अभी ट्रेड बुक में है, सॉरी ये अभी ऑर्डर बुक में है. My question is till what time will it stay in the order book? अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Assume that early morning 9:20 AM I have placed this order. 3:30 PM बज गए, अभी तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ही नहीं एग्जीक्यूट. तो what will happen to this order? It gets automatically cancelled. ऑटोमेटिकली ये सिस्टम से चला जाता है. इसी को हम बोलते हैं गुड टिल डे. गुड टिल डे. डे, आज का दिन खत्म, ऑर्डर खत्म. या तक ओके? सो नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज लॉजिकली GTC? गुड टिल कैंसल्ड मतलब until and unless I cancel it, it will still remain in the system. Is this okay? पक्का क्लियर है? Yes. But again let me repeat, GTC वाले ऑर्डर जनरली ब्रोकर अलाउ नहीं करते. Practically speaking, all the brokers will provide you GTD order. मतलब क्या हो जाएगा? बोलो 3:30 बजे ऑर्डर ऑटोमेटिकली मुझे सिस्टम में दिखना ही बंद हो जाएगा. It will go off from the system. It will get deleted from the system. But then, if I want to share, if I want to sell, if I want to buy the shares tomorrow, then what? Again, place a fresh order. Order place करने के लिए पैसा थोड़ी ना लगता है. Simple. You'll just have to place a fresh order. That's it. Concept is clear? Yes. So फटाफट बोलो कौन सा कंसेप्ट किया हमने अभी? वैसे देखा जाएगा तो दो कंसेप्ट्स किए along with GTC, order book and trade book. If you can, अच्छा by the way मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ कि ऑर्डर बुक कैसे दिखता है, ट्रेड बुक कैसे दिखता है. यू कैन सी इन एवरीवन्स. अगर आप जब खुद ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, एवरी ब्रोकर विल गिव दिस इन योर लॉग इन ओनली. लॉग इन करने के बाद आपको ये सब दिखते रहेगा. मेरे ऑर्डर बुक में कितना भी ऑर्डर्स है, फिर ट्रेड बुक में जाओ, ट्रेड बुक में कितना एग्जीक्यूटेड है, सब दिख जाएगा आपको. ओके, सो लेट अस राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? GTD. GTD, गुड टिल डे. गुड टिल डे. इफ एन इन्वेस्टर, अच्छा बाय द वे मैं अपने डिक्टेशन में इन्वेस्टर एंड ट्रेडर आई एम यूजिंग इंटरचेंजेबली. कभी ट्रेडर बोल रही हूँ, कभी इन्वेस्टर बोल रही हूँ, बट दोनों का डिफरेंस पता है. ट्रेडर इज अ
शॉर्ट टर्म गए एंड इन्वेस्टर विल बी अ लॉन्ग टर्म, बट मैं जनरली थोड़ा सा इसको ऐसे ही यूज करी हूँ, लूजली यूज करी हूँ थोड़ा. ओके, सो इफ एन इन्वेस्टर places a limit price order, if an investor places a limit price order at the rate rupees 190, at the rate rupees 190, comma where CMP क्या होता है, या फिर LTP लिखो, where LTP क्या था अपना, last traded price is 195, where LTP is 195. क्या होगा बोलो? The order will get immediately executed or the order will stay in the order book? The order will stay in the order book. The order will stay in the order book. आगे क्या लिखेंगे? इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, कॉमा, इट विल स्टार्ट अपियरिंग कहां पे? इन द ट्रेड बुक. इट विल स्टार्ट अपियरिंग इन द ट्रेड बुक. ओके, सो ऑर्डर बुक भी इसी में बता दिया, ट्रेड बुक भी मैंने इसी में बता दिया. बट देन लास्ट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, इफ एन ऑर्डर रिमेन्स अनएग्जीक्यूटेड, व्हेन विल इट गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड? एट द डे एंड. ओके, सो वेट, इफ अ GTD order is placed, if a GTD order is placed, if a GTD order is placed and the order remains क्या? Order remains what? Unexecuted. And the order remains unexecuted. कब तक? Till the day end. And the order remains unexecuted till the day end. Comma, then क्या होगा बोलो? क्या होगा? It will get automatically cancelled. It will get automatically cancelled. All concepts clear? Yes, पक्का? Very good. चलो, so अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी अभी के ये पॉइंट्स थे, we have discussed all. GTC which is more theoretical के बजाय मैंने आपको बता दिया GTD, and GTC भी technically बता दिया. What will happen with GTC? Tell me quickly. GTC में क्या होना है? जब तक हम कैंसिल नहीं करते, till then it will remain in the system. Okay, clear एकदम. So all types of orders are now clear. So ये sequence है, so we need not know what this sequence is because ये सब back end पे होते रहता है. लिमिट ऑर्डर मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है ऑलरेडी. क्या है लिमिट ऑर्डर? वी हैव टॉक्ड अबाउट. स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी मैंने आपको बता दिया है. मार्केट ऑर्डर क्या है मैंने आपको बता दिया है. आईओसी मैंने क्या आपको बता दिया है, राइट? सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वी हैव. अच्छा, डीक्यू ऑर्डर मैं आपको बताऊंगी. जीटीसी बता दिया, जीटीडी भी बता दिया. ओके ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर एक ले लेती हूँ अभी, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है मतलब? अच्छा, here I've taken a screenshot. I'm not sure whether you'll be able to see this or not. ठीक है, इसको हम देखेंगे. First let me talk about modification of order. The word itself says actually, एक बार मैंने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया, am I allowed to edit it? जैसे आप FB पे कोई पोस्ट डालते हो and after putting up the post you want, अरे I want to edit this. Are you allowed to do that? Yes. Similarly, if you place an order in the system and you want to edit it afterwards, can you edit it? Yes. Modification of orders is allowed. कभी कभी क्या होता है बताती हूँ. कभी कभी जोश में I put a limit order, price is at 200, I put a limit price order at 190 and मुझे समझ में आ रहा है यार ये ऊपर ही जा रहे हैं, I'll miss out on the bull run. I don't want to miss that. So what will I do? Modify the order. Modify, and can I say छोड़ो यार, limit छोड़ो, modify, direct go at market price. Is that also allowed?
Can I modify my order from a limit price order to market price order? That is also allowed. बात समझ में आ गई? टाइप ऑफ ऑर्डर में भी स्विच किया मैंने. That is absolutely allowed. अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, I don't want to miss the bull run. अभी इस कॉन्सेप्ट में आते थोड़ा सा. कॉन्सेप्ट आई गया तो उसमें थोड़ा सा जाते हैं. There are two types of major phases in the market. One is known as a bull phase and one is known as a bear phase. I'm sure you have heard these names. Bull मतलब generally ऊपर जाने वाला market and bear मतलब नीचे आने वाला. When I was learning about stock markets, ऐसे खुद से मन से थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा कुछ सीख के automatically, I was wondering यार why bull bear, why not tiger, why not lion? So I actually tried to research on this. Why bull or why bear? Anyone knows this answer? Bull क्या? Direct काय करतो? Oh, okay. So basically, you're very close to the answer. So whenever a bull kills its prey, okay, bull शिकार कैसे करता है? How does it kill its prey? It actually tosses the prey in the air. अपने शिकार को ऐसे ऊपर फेंक देता है सींग से, एंड इतना जोर से फेंकेगा कि once it hits down it will be killed. That's how a bull kills its prey. So what is the primary step? Toss it in the air. ये tossing in the air का एक्शन को बोला है bull. Okay. On the other hand, how does a bear kill its prey? Bear chokes its prey by pressing it down. घोट के मार देता उसको, चोक करके. ओके, सो दैट इज हाउ ये घोट रहा है, इसको चोक कर रहा है मार्केट को. दैट इज अ बेयर रन एंड दिस इज अ बुल. आज समझ में आया ये एनिमल्स कहां से आए. ओके, इज दिस क्लियर? बुल एंड बेयर कंसेप्ट. ओके, बुल एंड बेयर तो एक टर्म बोली जाती है, बट इफ यू आस्क एन इन्वेस्टर, आर यू बुलिश? यस, अग्रीड. सो when people are asked, are you bullish about the market? Are you bearish about the market? If an investor says, yes, I'm bullish about the market, means what? He expects that the market will go up. If he says, I'm bearish on the market, he expects that the market will go down. Instead of bull and bear, even two more terms are used. People might say, I'm long on the market. I'm short on the market. Okay, so there is अच्छे से बोलो ना प्यार से, क्या लॉन्ग ऑन द मार्केट, क्या शॉर्ट ऑन द मार्केट. लॉन्ग ऑन द मार्केट मीन्स व्हाट? ही इज अगेन बुलिश अबाउट द मार्केट, गोइंग लॉन्ग एंड गोइंग शॉर्ट. ओके, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है. वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन. फर्स्ट अंडरस्टैंड एक बार फिर से. बुल मीन्स अप. ओके, कौन से कलर से इंडिकेट होता है? कल भी मैंने शायद बोला था आपको. द मोमेंट इट्स ग्रीन इन कलर, it is bullish phase, it is a long perspective on the market. The moment we are talking about red, it's a bear, it's a short one. It will be always, अरे उल्टा हो गया बराबर, चाइना हो गया, रेड ऑरेंज आ गया वैसे, बट ठीक है. अच्छा, बाय द वे, यू नो व्हाई आई सेड चाइना? चाइना में उल्टा है. Throughout the world you have the same color scheme. Throughout the world. Tell me quickly, throughout the world क्या रहेगा? Red means what? Red means down throughout the world. And whenever I'm talking about green, green means what? Market is going up. Okay. So I actually was just googling. तो मैं बहुत करती हूँ, Google, YouTube, बहुत स्टडी रहती हूँ मगर तो रोज का 1 घंटा तो ऑलमोस्ट just trying to keep on learning new things. Random Google searches. तो I was just trying to read something about Chinese market. पहले सभी Chinese website ओपन हो गए, कुछ समझ में नहीं आया. Chinese में लिखा. Okay, then I found out one website and the market was actually up and it was showing red in color. And I was wondering यार ऐसे कैसे दिख रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि have I become color blind or what? You know this color blindness में ये सिर्फ 2 colors change होते हैं. Majorly 2 color blindness होता है. One of my friend is color blind. So you can imagine what happens with the traffic signal. Exactly ulta. Okay. So I was wondering यार ये क्या हो गया? Then I tried to Google search about this and then I found that China is the only country where whenever red color is there, it is market is up, bullish.
तो ये भी मैंने कहा यार इधर नहीं रुकना है, तो कुछ तो लॉजिक रहेगा यार इनका, मतलब सिर्फ पूरे वर्ल्ड जैसे करता उससे उल्टा करेंगे ऐसे थोड़ी ना होगा, कुछ तो होगा. Then I tried to search why this is so. And then the answer that I found was, in China, red color is treated to be very auspicious. So even if you observe, their flag is red. पूरा red flag है, उसके ऊपर ऐसे star star है ना. So red is very auspicious for them. So what do they say? When market is going up, red in color. And तो उल्टा के लिए उन्होंने green कर दिया फिर. Okay, so color scheme भी clear है एकदम. So क्या color scheme बोल रहे हैं? देखो red down है, इसी को हम क्या बोलते हैं? Red down है, इसी को हम क्या बोलते हैं? Market is what? Bearish. Investor says we are going long or short? Short on the market. Exactly opposite terms, सभी opposite term. अगर green में है तो market is going up, इसी को क्या बोलते हैं? Bullish. Investor क्या बोलता है? I am long on the market. You have to write down in this way only. ये एकदम easy interpretation हो जाएगा आपका. डन. यस, चलो. सो अब ये समझ में आ गया, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलिश, बेरिश. चलो, आई वांट अ क्विक आंसर नाउ. थोड़ा सा प्रैक्टिकली केस स्टडी टाइप समझ लेते हैं. अज्यूम दैट यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. यू फील दैट, अच्छा, करंट मार्केट प्राइस, आज हमने बोला था 2000 इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ टीसीएस. एंड इफ यू फील दैट आइडियली इट शुड गो अप, आर यू बुलिश और बेरिश? यू आर बुलिश. थोड़ा ध्यान देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है. एक बार फिर से, करंट मार्केट प्राइस ऑफ टीसीएस अराउंड 2000. यू फील दैट इट विल आइडियली गो अप. यू आर बुलिश और बेरिश? Bullish. Are you going to go long? Yes. You are going to go long means what? Are you going to buy TCS or are you going to sell TCS? Obviously you are going to buy TCS. क्यों? Because we are bullish, because we feel that ideally it is going to go up. तो आप क्या करेंगे? So your thought process will be that I'll buy at 2000 and when it ideally goes up, let us say to 2500, at that time I will, हाँ तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड I will, अभी अभी बोला था थोड़ी देर पहले, square off my position. Correct? So I will buy at 2000 and the moment it hits 2500, I'll square off my position. This is a long position. Short position में क्या होगा बोलो फटाफट. Right now current market prices. Right now current market price is what? 2500. अब इसको हम LTP लेंगे. Case 2 आ रहा है अभी. Case 2 current market price is how much? LTP is how much? 2500. I am short. I am bearish about the market. मुझे लग रहा है यार कुछ बुरा न्यूज आने वाला है, या फिर ऐसे सुनने में आया कहीं से कि यार ये TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया अभी. Did you watch Tata Motors news by the way? I'll just flip the example to Tata Motors. That can be a classic example of bearish. Tata Motors. Tata Motors के लिए standalone profit was very good, but the consolidated version they were into huge losses this quarter. जिनको standalone and consolidated ये concept नहीं पता है, in short बता रही हूँ एकदम. Standalone means what? Only Tata Motors. एक बार फिर से, what is standalone? Only Tata Motors. What do we mean by consolidated? Consolidated means Tata Motors, उसके सभी छोटे छोटे subsidiaries, उसके सभी associates, all put together. That is what? Consolidated. अब एकदम ध्यान से सुना. Tata Motors का there is one subsidiary. If you have heard about this, JLR, Jaguar Land Rover, that is the subsidiary of Tata Motors. यहाँ तक okay? Tata Motors by itself, standalone, was performing good, but JLR has made a huge loss this quarter. Huge loss. अभी इतना बड़ा loss है. Quickly I want an answer. Should you be bullish on Tata Motors or should you be bearish on Tata Motors?
should be bearish on Tata Motors. Should you go long on Tata Motors? Should you go short on Tata Motors? Go short on Tata Motors. Okay. अब बहुत डेंजर कंसेप्ट आ रहा है, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसा कंसेप्ट है. करंट मार्केट प्राइस कितना है? 2,500 है. आपको ये समझ में आया है? कब समझ में आया? अभी मान के चलो राइट नाउ इट इज 4 o'clock, तो आज का मार्केट क्लोज हो गया. 4:30 बजे टाटा मोटर्स वाले लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस. दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस. 4:30 बजे टाटा मोटर्स वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, एंड वेर इन their main guys, maybe CFO and all these big guys, they are talking about this time our quarterly profit has gone down, and main reason being Jaguar Land Rovers has not performed well, blah 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 blah, whatever. So what is your interpretation out of this press conference? That ideally tomorrow when market opens, should it be a gap up opening for Tata Motors, or should it be a gap down opening for Tata Motors? See, one more concept you understood right now. Yesterday we had discussed why there is a gap up or gap down. After 4 जितने भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस होंगे, बाय सेल, इसके कारण देयर कुड बी अ गैप अप और गैप डाउन. दैट वाज वन रीजन. राइट नाउ आई टोल्ड यू वन मोर रीजन. व्हाई देयर कुड बी अ गैप डाउन. क्या रीजन हो सकता है? सम न्यूज व्हिच कम्स इन आफ्टर द मार्केट आवर्स. आ रहा है क्या ध्यान में? न्यूज क्या आ गया? टाटा मोटर्स प्रॉफिट हैज गॉन ट्रिमेंडसली डाउन. So I know now that tomorrow when market opens, Tata is going to go down. एक जबरदस्त gap down opening मिलेगा, and शायद ये और भी नीचे जाएगा. It will go down further. So ideally, what should I do? Tell me. Should I buy this share? There is a very nice saying which says that never catch a falling knife. हमेशा याद रखो है. Never catch a falling knife. If it has already fallen down मतलब बहुत करेक्ट हो चुका है already it has fallen down and down already more than, मतलब जो 100 rupees का तो ऑलरेडी बेचारा 20 rupees पे आ गए. अब कभी थोड़ा ना थोड़ा तो ऊपर आएगा यार. But the time it is falling, don't try to catch it. You are going to risk out very badly. Is there any positive thing that you can see in Tata Motors right now? Immediately, कल ही तो बड़ा न्यूज आया है. अपने एग्जाम्पल में कल ही तो बड़ा, बाय द वे दिस इज नॉट वेरी ओल्ड ऑल्सो, दिस इज जस्ट 1 or 2 weeks पहले का बता रही हूँ मैं आपको. अभी का न्यूज है ये. ओके, सो यू कैन इमेजिन राइट नाउ टाटा मोटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल दीज गाइज हैव टोल्ड कि ऐसे ऐसे हो गया है. इज देयर एनी गुड थिंग अबाउट टाटा मोटर्स राइट नाउ? नो. शुड आई बी बाइंग टाटा मोटर्स राइट नाउ? येस और नो? I should not be buying Tata Motors right now, for sure. Not immediately at least. Maybe if it corrects a lot, I may think of buying afterwards. Not right now. But you know, I want to earn profit here. I want to earn profit. I know that it is going to go down. How can I earn profit? First sell, ध्यान से सुनो, first sell at 2,500. This is my first step. And when it goes down, assume it goes down to 2,000. At that time, buy it. Okay? यहाँ तक okay? First what did you do? Sell. And then what did you do? Buy. ऐसा कैसे हो गया? First sell and then buy. Generally sequence क्या होता है? अरे first buy and then sell. Okay. इसी concept को आप बोलते हो concept of short sell. Very important concept coming up. Concept of short sell. Short sell में क्या होता है? Sell first, buy later. ध्यान से सुनो. This is not easy to digest. Can you sell something which you don't have? Can you? I know. मैं पहले ही बता रही हूँ. Very hard to digest. Can you sell something which you don't have? Just as an example, मैं बोल रही हूँ, ओ मेरी वो 4 BMW पड़ी है, 2 Jaguar पड़ी है, वो 2-4 Mercedes है, किसी को चाहिए? Anyone wants? And अगर आप बोल रहे हो हाँ हमको चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ मेरे पास वैसे है ही नहीं, but I'm wanting to sell. What is my intention? Understand? ध्यान से सुनो. What is my intention? मैं ये सभी गाड़ी आप सबको बेचूंगी. I will tell you that I will give you the cars. अभी पहले पैसा दे दो. I'll give you the cars. NT+2. Okay. आज आप पैसे दे दो. पैसा तो मुझे टी पे चाहिए. थोड़ा ध्यान से. पैसा तो मैं टी पे लूंगी. बट मैं आपको डिलीवरी ऑफ कार कब दूंगी? T+2 में दे दूंगी. अब मैं क्या कर रही हूं? अभी सेल तो की है कार्स. मान के चलो मैं टोटलिटी में आई हैव सोल्ड 10 कार्स टू यू ऑल. या तो ओके. अब मैं आई एम इन सर्च ऑफ समवन. किसके सर्च में हूं मैं?
जो मुझे गाड़ियां बेचेगा. There should be one more seller in the market from whom I'll buy these 10 cars. Yeah, तो okay? Should I be buying these cars at a price lower than what I sold to you? So assume on an average, मैंने आपको 50 lakhs per car बेचा है on an average. So I should be searching for a seller who is ready to sell me at least at, let us say, 48 lakh rupees. या तो okay, अब मैं क्या बोलती हूँ, 48 lakh rupees में मुझे एक seller मिल गया. मैंने क्या किया, उससे गाड़ियां सभी बाय की. At what? Average price of 48 lakhs. Did I pay him cash? अरे did I pay him cash? Yes. 48 lakhs में मैंने कार लिया. And अब मैंने आपको वो कार डिलीवर कर दी. What is my profit? Profit is 2 lakh per car multiplied by 10 cars. So 20 lakhs is my profit. ये मैंने क्यों किया, ये मैंने कैसे किया? Concept is sell first and buy later. Quickly tell me, practically ये possible है या impossible है? प्रैक्टिकली ये एज गुड एज इम्पॉसिबल है. कौन ऐसे बोलेगा यार मर्सिडीज चाहिए, यू ओनली टेल मी मर्सिडीज चाहिए बोल रही. हाँ मेरे पास है एक मर्सिडीज, अभी नहीं है, लाऊंगी मैं, पहले पैसे दे दो. चलो दोगे पैसे? नो वन विल डू दिस यार. दिस वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल एग्जांपल. व्हिच फूल विल डू दिस? नो वन विल डू दिस. या तो ओके, आपको डर क्या रहेगा बोलो सबसे ज्यादा? मैं पैसे लेके भाग गई तो दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट इन योर माइंड, दैट इज द बिगेस्ट फियर इन योर माइंड. या तक ओके? नाउ अंडरस्टैंड. आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट नाउ. मैं क्या बोलती हूँ, एनीवन वांट्स टू बाय माय 1 लाख शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स? एनीवन? आप सब ये बोल रहे, मैं बोल रहा बड़ा इन्वेस्टर अमन ना. अमन इज सेइंग टाटा मोटर्स 1 लाख ले लो, मैं बाय करूंगा, चलो दे दो. सो अमन इज वांटिंग टू बाय 1 लाख शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स. दे आर वेरी गुड, ले लो 1 लाख. आई सोल्ड. मेरे पास है क्या? मेरे पास नहीं है. I don't have the shares, but I'm selling him 1 lakh shares. Sell first किया मैंने, sell first. ध्यान से सुनो. At what time? Assume immediately market open होते होते 9:15 AM I sold shares. यहाँ तक ओके? क्या उसने immediately मुझे पैसा दिया है? नहीं, उसने भी मुझे पैसा नहीं दिया है. मैंने उसको शेयर्स कब देने? अभी एक्चुअल एग्जांपल चल रहा है ना अपना. आइडियली उसने मुझे पैसे कब देने? T+2 मुझे मिल जाएगा पैसा. उसको शेयर्स कब मिल जाएंगे? T+2. बट वेट, मैंने सेल किया अगर है, विच आई डोंट हैव एनीथिंग, देयर इज अ रूल इन स्टॉक मार्केट विच सेज दैट इफ यू हैव डन अ शॉर्ट सेल इन इक्विटी शेयर्स, यू हैव टू कवर योर पोजिशन बिफोर मार्केट एंड्स. माई गॉड. ओके, सो ध्यान से सुनो. मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी है. इफ आई एम शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या हो रहा है? सेल first, buy later. If I'm doing a short sale, I have to cover my position. Cover मतलब is square off my position. Mandatory है. कब? Before market closes. So मुझे कब close करना पड़ेगा ये? I have to buy it back at 3:30. तो क्यों किया ये सब झमेला? प्राइस कम हो सकती है बीच में. प्राइस कम हो सकती है मतलब क्या? जब टाटा मोटर्स ओपन हो गया, assume just as an example, Tata Motors opened at 200 rupees and नीचे जाते 150 तक गया नीचे. Will I buy it back at 150? Yes. Will I earn a profit? Yes. 50 per share profit मिला. Oh, can we earn profit in falling markets? Can we earn profit in falling markets? Yes. कैसे? By doing a short sale. कुछ नहीं समझा. बहुत कंफ्यूजन हो गया. हाँ मुझे पता, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, बहुत कंफ्यूजन हो गया. व्हाट इफ्स बहुत आ गए. आ रहा. वेट, वन बाय वन. सबसे पहले अभी तक क्या फंडा पता है अपने को? एवरीवन इज हैप्पी व्हेन मार्केट्स आर राइजिंग, बिकॉज इन अ राइजिंग मार्केट इज इट वेरी इजी टू मेक प्रॉफिट्स. हाउ? बाय नाउ, सेल लेटर, जो हम नॉर्मल सिनारियो में करते हैं, विच एवरीवन नोस. एनीवेज मार्केट ऊपर जाएगा. आज बाय करो, 1 महीने के बाद सेल करो, 1 साल के बाद सेल करो, व्हाटएवर. एवरीवन नोज हाउ टू मेक प्रॉफिट इन राइजिंग मार्केट्स. कैन वी मेक प्रॉफिट इन फॉलिंग मार्केट्स? कैन यू बी हैप्पी इफ मार्केट्स आर फॉलिंग? यस. मार्केट इज फॉलिंग डाउन. कैन यू से दैट? यस. हाउ डू यू गो अबाउट दैट? यू डू अ शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? यू हैव टू
cover your position. Cover मतलब ही square off your position when before the market ends at 3:30. So हमारे एग्जाम्पल में क्या हो गया था बोलो, 200 पे मैंने पहले 200 पे पहले यहाँ पे मैंने पहले सेल किया. When the share price went down and down to 150, what will I do at that time? Buy it back. आप लॉजिकली बोलो, am I required to give him delivery of shares as such? नहीं, मैंने आज के आज वो खत्म ही कर दिया ना. I bought today, I sold today. Transaction as such कुछ हुआ ही नहीं, as good as. I will not have to deliver the shares to him because आज ही मैंने सेल किया है, आज ही मैंने बाय भी कर दिया. इसी को कुछ बोलते हैं क्या? There is a term here, intraday. क्या बोलते हैं? Intraday. Intraday means what? You buy and sell on the same day. ये होने के बाद ये लिखना है टर्म आज का, इंट्राडे टर्म. यहां तक भी ओके? अब जो सवाल आ रहे हैं मन में, धीरे 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 बोलेंगे वन बाय वन. उल्टा हुआ तो क्या? उल्टा हुआ तो क्या? आज मुझे लगा था कि टाटा मोटर्स का ना बहुत शेयर नीचे जाएगा, इसलिए मैंने आते आते क्या किया, 200 पे सेल कर दिया. एंड ये मनहूस 200 के बाद नीचे आया ही नहीं यार. इट्स गोइंग अप इन द एयर. 200 का 205, 210, 220. मार्केट में कुछ भी हो सकता है. देयर इज अ न्यूज, सम न्यूज दैट देयर विल बी वन मोर सब्सिडियरी, और कुछ भी न्यूज हो सकता है. जैसे न्यूज क्या हो सकता है देखो, दैट टाटा मोटर्स इज गेटिंग अ फ्रेश ऑर्डर ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली. क्यों? टू प्रमोट इलेक्ट्रिक कार्स. ऐसे कुछ तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. ओके, जैसे अपने इलेक्ट्रिक आजकल कार्स आ रहे हैं, आपको पता है ना. सो अज्यूम गवर्नमेंट बोलता है हम ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक मिनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे. जैसे ओला उबर है, हम कंपटीशन देंगे ओला उबर को. थोड़ा ज्यादा इनोवेटिव हो रही हूं मैं. ओके, government is saying we are going to give competition to Ola Uber and we are going to come up with electric cars. And who is going to manufacture all this? Tata Motors. आ गया ना न्यूज मार्केट में. कब आया नालायक? 200 पे मैंने शॉर्ट करने के बाद आया. So is it going to go down or is it going to climb up continuously today? Climb up. अब मैं क्या करूं? 200 का ये ऊपर जा रहा है, 200 to 10. अब I will have to square it off. Before डे एंड, बिफोर 3:30 स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा. मतलब मान के चलो आज ये गया 235 तक. एवरीवन इज हैप्पी, मार्केट इज गोइंग अप. आई एम वेरी सैड बिकॉज आई वॉज शॉर्ट. सो 235 पे गया तो मेरा पर शेयर लॉस कितना हो गया? 35 रुपीज. आई हैव टू स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन. ओके, यू हैड वन मोर डाउट. यस, So you are saying कि मैंने शॉर्ट कर दिया एंड मैंने बोला बाद में देख लेंगे. नहीं, ये नहीं हो सकता है. आई हैव टू स्क्वायर इट ऑफ. इट्स अ रूल बाय स्टॉक एक्सचेंज कि इफ यू हैव शॉर्टेड, आइदर यू गिव डिलीवरी और यू क्विट इंट्राडे. Either you give delivery means what? Let us understand. First let me just explain what you mean by either you give delivery. So sometimes what I do is, I do a short sale many times by the way. Okay, अब मैं short sale generally सेफर साइड कब हो सकता है बताती हूँ मैं आपको. Assume I have already bought that share let us say 1 month ago. मेरे डैश अकाउंट में ये शेयर्स है, डीमैट अकाउंट. मेरे डीमैट अकाउंट में ये ऑलरेडी शेयर्स है. किसके शेयर्स है? मान के चलो टाटा मोटर्स के ही है. I already have 100 shares in my account. And I short के मतलब मैंने पहले सेल किया है with an intention that I will buy back afterwards. ओके, बट मैंने सेल करने के बाद ये नीचे आया नहीं, ये ऊपर 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 जा रहा है. इज इट ओके देन इफ आई डोंट बाय? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कैन सेल द एग्जिस्टिंग शेयर्स, बात खत्म. सो लेट मी जस्ट कंप्लीट माय एग्जांपल. आधे लोगों को नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से बताती हूँ. शैल आई रिमूव दिस? बहुत खिचड़ी हो गई ना इधर. हाँ सुनो, विल स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्लेट. ओके, ध्यान से सुनो. डू आई ऑलरेडी हैव 100 शेयर्स इन माय डीमैट अकाउंट? कौन से कंपनी के? टाटा मोटर्स के है मेरे पास ऑलरेडी. ओके, मैंने ये सेल कितने पे किए? 200 रुपीज पे मैंने 100 शेयर सेल कर दिए विथ एन इंटेंशन कि जब ये नीचे आएगा आई विल स्क्वायर ऑफ, आई विल बाय बैक. या तो ओके, बट ये नीचे गया ही नहीं. ये क्या हो गया? ऊपर जाते 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 क्या? व्हाट आई कैन डू?
व्हाट कैन आई डू? मैं क्या बोलूंगी, ये मेरे पास जो 100 शेयर्स है ना, जाओ ये लेके जाओ। जो मैंने सेल किया ना, आई सोल्ड 100 शेयर्स ना, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने जो सेल किया ना, ये यही 100 शेयर्स तो मैंने सेल कर दिया है, ले लो 100 शेयर्स की डिलीवरी ले लो। कब मिलेगा आपको? सामने वाले को कब मिलेगा? T+2 पे मिलेगा, ले लो ये शेयर्स, बात खत्म। प्रॉब्लम कब आता है? व्हेन आई डोंट हैव शेयर्स, तब प्रॉब्लम आता है। तो जैसे मैंने बोला था, इफ आई एम सेलिंग समथिंग विच आई डोंट हैव, देन इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट आई हैव टू स्क्वेयर ऑफ माई पोजिशन बिफोर द डे एंड्स। अब समझ में आई क्या बात? पक्का? यस? आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हमने बोला था कि अगर ऐसे सिनारियो आ जाता है that there are no sellers in the market, क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो। 200 रुपीज पे मैंने सेल किए थे, कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। यहां तक ओके? अभी नीचे जा रहा है, नीचे 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 नीचे, कितने तक गया? 180 तक गया, लेट अस से 180 तक गया। एट लेट अस से 3:15 तक गया, ये 3:15 PM बच चुके, 180 तक नीचे आ गया। मैंने कहा यस वेरी गुड, 20 रुपीज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर्स, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, फैंटास्टिक। अब नाउ आई हैव टू फाइंड समवन हु इज रेडी टू सेल एंड आई एम रेडी टू बाय। अब क्या हो सकता है? कोई सेल ही नहीं करना चाह रहा यार। कैन दैट बी अ बिग प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर मी? यस, तो बहुत डेंजर हो जाएगा। दैट आई वांट टू बाय, देयर इज नो वन टू सेल। तो इसको आप बोलते हो, नया कंसेप्ट आ गया, इसको बोलते हैं, अच्छा इन सिंपल वर्ड्स, हैव आई ऑनर्ड माय कॉन्ट्रैक्ट और हैव आई डिसऑनर्ड माय कॉन्ट्रैक्ट? डिसऑनर हो गया ना ये। ना मैं आपको 100 शेयर्स की डिलीवरी दे पाई, ना मैंने पोजीशन को कवर किया, नथिंग आई कुड डू। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1, देयर वर नो शेयर्स, सॉरी देयर वर नो सेलर्स, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यार मैं भूल गई बाय करना, भूल गई मैं। आई वॉज बिजी इन अ लेक्चर, आई गॉट एनक्रॉस्ड इन टीचिंग, आई डोंट नो व्हेन द बेल रंग, क्लास इज ओवर, आई सेड 3:30, ओके वेरी 3:30, आई डिड नॉट स्क्वेयर ऑफ। कुड दिस ऑल्सो बी पॉसिबल? यस, व्हाई नॉट? भूल गई हो सकता है, गलती भी हो सकती है, मेरे साथ हुआ है प्रैक्टिकली, अपने पास बहुत बहुत केसेस है ऐसे। आई टेल यू मेरे साथ क्या हुआ था प्रैक्टिकली, आई एम ऑफ कोर्स गोइंग टू टेल योर आंसर। तीनों केसेस सेम ही है, बिकॉज सी शायद मैंने आपको ये बोला था, आर वी अलाउड टू हैव 2 डीमैट अकाउंट्स? यस, वी आर अलाउड टू हैव 2 डीमैट अकाउंट्स। आई टेल यू प्रैक्टिकली, मेरा एक आनंद राठी करके एक ब्रोकर है, एंड ईडलवाइस करके एक ब्रोकर है, राइट? ये दोनों ब्रोकर्स के पास मेरा खुद का डीमैट अकाउंट था। ओके, दिस वॉज वे बैक इन 2008-9 के आसपास की बात है ये। आई हैड एयरटेल, एयरटेल नाम सबने सुना है? एयरटेल के 10 शेयर्स मेरे पास थे। कौन से अकाउंट में थे? ईडलवाइस में 10 शेयर्स थे मेरे पास। यहां तक ओके? एयरटेल के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे। ओरिजिनली आई हैड बॉट एयरटेल शेयर्स, मैंने बाय किए थे एयरटेल के शेयर्स एट 900 रुपीज ईच। ऐसे मेरे पास 10 शेयर्स थे। यहां तक ओके क्या? डू आई हैव 10 शेयर्स इन माई डीमैट अकाउंट ऑलरेडी? यस और नो? यस। टैक्स ऑडिट का सीजन चालू था, सितंबर सीजन चालू था, एंड लाइफ वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। एयरटेल का रिजल्ट अनाउंस हो गया एंड दैट स्टॉक सडनली जम्प्ड अप ऑलमोस्ट बाय 10%। सो ये तब गया 990 पे। आई सेड वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद द प्रॉफिट, लेट मी क्विट। और कितना ऊपर जाएगा? 10% ऑलरेडी मिल गया, आई एम हैप्पी, लेट मी सेल ऑफ। यहां तक ओके? प्रॉफिट मिल गया था 10% का। यस, आई सेड वेरी गुड। तब तो मेरे पास मतलब मोबाइल एप्स वगैरह नहीं रहते थे, 2008-9 की बात है। मैंने क्या किया, फोन करके ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था। आई कॉल्ड अप माई ब्रोकर, हेलो हेलो, आ रही क्या बात समझ में? हेलो, सेल 10 शेयर्स। सुबह सुबह हो गया था 10 AM, सुबह 10 बजे मैंने उसको कॉल किया, सेल 10 शेयर्स। कौन से कंपनी के? एयरटेल कंपनी के, भेज दो। सेड ओके, भेज दिया। बात आ रही है समझ में? उसने भेज दिया। 3:30 बजे के बाद आनंद राठी से मुझे फोन आता है,
मैडम यू डिडंट स्क्वायर ऑफ. नहीं करना है मेरे को स्क्वायर ऑफ. ऐसे नहीं रहता मैडम. ही स्टार्टेड टीचिंग मी. आई सेड डोंट टीच मी, आई नो दिस. He said, madam, you don't have shares in your demat account. I said, what rubbish? Check properly. I have shares in the demat account. I said, madam, नहीं है. तब दिमाग की बत्ती चल गई. I had called it a wrong broker. अब क्या होता है? मैंने कहा एक काम करना, इधर से इधर ट्रांसफर कर दो. आ रहा है क्या बात समझ में? इधर से इधर ट्रांसफर कर दो. अच्छा, अंडरस्टैंड. आज भी आइडियली ये नहीं अलाउड है. जैसे अपन बोलते हैं ना, बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में अपन क्या डायरेक्टली एक सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे एक डिमैट से दूसरे डिमैट अकाउंट में मोबाइल ऐप से टक टक ट्रांसफर ऐसे नहीं होता है. दिस इज नॉट अलाउड बाय सेबी एज ऑफ नाउ. ओके. अच्छा, थोड़ी अंदर की बात आपको बोलूं. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड बी सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और नॉट. अंदर की बात ऐसे है कि अगर मेरे ब्रोकर के साथ बहुत अच्छी खासी पहचान है, इन शॉर्ट वो जुगाड़ कर सकता है. बट दैट वॉज जस्ट व्हेन आई हार्डली एड, मतलब मुझे याद भी नहीं, शायद जस्ट से क्लियर किया था, इतना डिटेल में मुझे पता भी नहीं था. सो अगर तब ब्रोकर के साथ अच्छी खासी पहचान होती थी तो ही कुड हैव डन समथिंग फॉर मी. बट सर मैडम इसका कुछ नहीं हो सकता है. अगर होता क्या है बोलो फिर. ही सेज, जैसे इफ यू डोंट हैव मनी इन अ बैंक अकाउंट एंड यू इश्यू अ चेक ऑफ दैट, क्या होता है? चेक बाउंस होता है. वैसे दिस इज लाइक अ शेयर बाउंस. I have sold something which I don't have and I have not squared off. तो ये हो जाता है चेक बाउंस जैसा शेयर ऑक्शन. शेयर ऑक्शन नहीं, शेयर बाउंस नहीं बोलते, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ शेयर ऑक्शन. हो जाता है, नीलाम हो जाता है. शेयर ऑक्शन मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनो. स्टेप नंबर 1, had I sold it? Had I sold it? Yes. Step number 2, did I cover it? 2-3 अलग अलग सिनारियोस हो सकते हैं, अलग अलग सिनारियोस जो अभी डिस्कस किए. पॉसिबिलिटी नंबर 1, नो सेलर इन द मार्केट. पॉसिबिलिटी नंबर 2, आई फॉरगॉट. पॉसिबिलिटी नंबर 3, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ द रॉन्ग ब्रोकर. मंजिल एक ही है. क्या मंजिल होगा इसका? रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है. क्या होगा? लाइफ में एक ही चीज होने वाली, इसका शेयर ऑक्शन हो जाएगा. ओके. मतलब क्या होता है शेयर ऑक्शन? मतलब क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट टाइम सुन रही थी, मैं भी बहुत एक्साइट हो गई. बोला इतना एक्साइट मत हो, ये पेनल्टी है, मेरे पैसे जाने वाले थे. मैंने कहा ठीक है ना, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा ना, इतना प्रैक्टिकली कौन सिखाएगा मेरे को. ओके. सो ही सेड नाउ व्हाट हैपेंस. देखते कुछ याद आता है क्या आपको? 3:30 मार्केट तो क्लोज हो गया. बाय हुक और क्रुक आई हैव टू बाय दी शेयर्स नाउ फ्रॉम समवन. ब्रोकर बोलता है ठीक है आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं. हाँ. From what time to what time? Yes, that's what we discussed yesterday. Very good. From 3:30 to 4 p.m. Post market hours. Post market hours. ये I have seen some books which talk about these concepts. कोई बुक्स में है, कोई बुक्स में नहीं है. पोस्ट मार्केट ये वाला स्लॉट बोलते हैं वो. एंड 4 बजने के बाद to 9 a.m. they call it as after market hours. पोस्ट मार्केट आवर्स, आफ्टर मार्केट आवर्स. ये 2-3 बुक्स में मिल गया मुझे ऐसा कंसेप्ट. ओके. बट मेनली पोस्ट मार्केट आवर्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? पीपल लाइक यू एंड मी और ब्रोकर्स. ब्रोकर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. दे एक्चुअली ट्राई टू कवर ऑल द बैड डिलीवरीज. कवर ऑल द बैड डिलीवरीज मतलब किसी ने गलतियां जितनी भी की है उसको सुधारने के लिए ये जो टाइम दिया रहता है ये आधा घंटा रहता है. ओके. सो हु इज इन अ डेस्परेट बाइंग मोड राइट नाउ? डेस्परेटली कौन बाय करना चाह रहा है? मी या माई ब्रोकर ऑन माई बिहाफ? माई ब्रोकर ऑन माई बिहाफ. माई ब्रोकर सेज, अच्छा मैंने कितने में सेल किया था याद है क्या आपको? भारतीय एयरटेल सेल एट 990 किया था मैंने, बिकॉज तब मैंने बाय किया था 900 पे. ओरिजिनली मैंने बाय किया था 900 पे. 10% ऊपर गया शेयर, इसलिए मुझे लगा वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई सेल इट ऑफ 990. ओके. मैंने ब्रोकर को बोला यार कुछ भी करो बाय तो कर लो, सो दैट अदरवाइज से भी पेनल्टी लगाएगा मुझे. क्या आई डिसऑनर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके लिए क्या होता है? बायर बोलते हैं कुछ भी हो जाए आई विल बाय इट फॉर यू, डोंट वरी. सो हु इज इन अ डेस्परेट मोड क्विकली? बायर और सेलर? बायर इज इन अ डेस्परेट मोड. सेलर सेज वेरी गुड. सेल कौन कर रहा है? कोई दूसरा ब्रोकर. दूसरा ब्रोकर बोलता है आई एम रेडी टू सेल एट 1050. लेना है तो लो, नहीं लेना है तो बाय बाय. आ रहा है क्या समझ में? क्या हो गया सिनारियो फिर? मैंने बोला यार ले लो, कुछ भी हो जाए ले लो, बात खत्म कर दो.
क्या हो गया फिर 1050 पे हो गया मेरा शेयर बाय, एंड मैंने सेल कितने में किया था 990. लॉस हुआ या प्रॉफिट हो गया? लॉस ऑफ ₹60 पर शेयर, जो मुझे प्रॉफिट होने वाला था ऑलरेडी एट 90 पर शेयर. जो 90 शेयर प्रॉफिट होने वाला था वो बेचारा 60 पर शेयर लॉस हो गया मेरा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 ना, ₹600 unnecessarily lost. But new concept learnt. शेयर ऑक्शन वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट नाउ. कभी भी उसके बाद मेरा शेयर ऑक्शन उस तारीख से लेके आज तारीख तक एक बार भी शेयर ऑक्शन नहीं हुआ है. बट देन वी केम टू नो अच्छा ऐसे ऐसे होता है. यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें अभी? पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी आपको लगती है दैट इज 20% ऑफ योर प्राइस. ये मैक्सिमम पेनल्टी आपको लग सकती है. सॉरी, दैट इज द मैक्सिमम पेनल्टी दैट यू मे बी लेविड विथ. मतलब अभी ये 20% क्यों बताती हूँ मैं आपको. अब 20% ऑफ व्हाट इज ऑल्सो वो मतलब वो मार्केट, मतलब आपको उसका कुछ एवरेजिंग वगैरह किया जाता है कि आपने कितने में सेल किया है. देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर दैट. दिस और दिस विच एवर इज हायर टाइप्स. आपने सीए में बहुत बार पढ़ा होगा ना, दिस और दिस विच एवर इज हायर. ऐसे एक प्रॉपर फॉर्मूला डिवाइस्ड है. इतना डेप्थ में नहीं जाना है अपने को भी. ओके, बट ये आपको पेनल्टी लग सकता है. पेनल्टी क्यों लग सकता है ये भी समझ लो. कुड देयर बी अ पॉसिबिलिटी दैट मैं बोल रही हूँ मेरे को चाहिए यार, मेरे को शेयर परचेस करना है यार, परचेस करना है, सामने से कोई बोल नहीं सेल करना हमको. कुड दिस बी ऑल्सो सिनेरियो? आ रहा है क्या ध्यान में? कौन सा मार्केट चालू है? रेगुलर मार्केट चालू है, ऑक्शन मार्केट चालू है? ऑक्शन मार्केट चालू है. आई एम डेस्परेटली, आई मीन्स माई ब्रोकर इज डेस्परेटली वांटिंग टू बाय. सामने से कोई भी ब्रोकर बोल रहा है नहीं सेल करना है हमको. क्या प्रॉब्लम है क्या तुमको नहीं सेल करना? व्हाट विल हैपन? My order still remains unexecuted, the buy order. Okay, जिसने मेरे से आइडियली बाय किया था, किसने बाय किया था? जब मैंने शॉर्ट किया था ना, जब मैंने सेल किया था at 990, means someone had bought at 990. Someone, that person should have got the delivery of shares. एकदम प्रैक्टिकली सुनो, that person should have got delivery of shares. बट मैं बोलती हूँ नहीं दे सकती मैं डिलीवरी तुमको. क्यों? मेरे पास शेयर ही नहीं है. तो बोलते ले लो ना किसी से, बाय करो. नहीं ना, बाय कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं है. हाउ कैन आई बाय एंड गिव इट टू यू? कुड दिस आल्सो हैपन? यस, ये भी मेरे साथ एक बार हुआ है, बट आई वाज ऑन द बायर साइड. मतलब मैंने बाय किया था, मैंने जनरल बाय किया था, लेकिन मेरे को शेयर से नहीं मिले. आई कॉल्ड माय ब्रोकर, क्या मजाक है यार, मैंने 2 दिन पहले शेयर बाय किए थे, मेरे को अभी तक नहीं आया. तो मैडम आपको पैसा आया होगा आपके अकाउंट में. पैसा आ गया? कैसे पैसा आ गया? जो पेनल्टी उसको लग गया था उसका एक पार्ट बायर को ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में चला जाता है. ओके, क्यों? क्योंकि मैं बोलती हूं उसी, आई कैन ऑलवेज से मैंने क्यों बाय किया था, बिकॉज आई फेल्ट कि ये इतना ऊपर जाएगा. सेलर तेरी वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई यार, मेरी गलती है क्या? एज अ बायर मेरी कुछ गलती है? नहीं. सेलर बोलता है रोना मत, आई वॉज नॉट एबल टू गिव यू शेयर बट आई विल गिव यू मनी एज अ कॉम्पनसेशन. खुद की खुशी से देता है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, पेनल्टी लगाता है ऐसे भी, एंड पेनल्टी का पैसा सम पार्ट स्टेज विथ द ऑर्गेनाइजेशन से भी, एंड सम पार्ट इज पास्ड ऑन टू द बायर. पॉइंट क्लियर है? यस. तो ऑक्शन मार्केट में भी ऐसे हो सकता है, देयर इज नो सेलर ओनली. कैन दैट बी एज अ कैपिटल गेन आइडिया? अभी इसके लिए मेरे हिसाब से that should be treated as other income. I'm not a tax expert though, but according to me it should be that should be other income, because effectively there was no buying or selling. Actual हम बोलते हैं ना कैपिटल गेन के लिए there should be a capital asset, है ना? Section 2 subsection 14 capital asset याद है मेरे को. Okay, so capital asset underlying था ही नहीं इस transaction में as such, never got executed. So ideally it should be treated as other income, but you may have a second opinion with tax experts. Okay, यहाँ तक ओके. अब एक और मजेदार किस्सा ऑक्शन मार्केट से रिलेटेड. अच्छा, एक एकदम वेग सिनारियो हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है क्या? सेम सिनारियो में मैंने सेल कितने में किया था? बोलो फटाफट. 990 में. ओके, उसके बाद 990 पे सेल करने के बाद ये पागल जैसे शेयर गिरने लगा, पागल जैसे गिरा गिरा गिरा, एंड इट हैज क्लोज्ड अज्यूम एट 800 रुपीज टुडे. यहाँ तक ओके? सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, बट आई फॉरगॉट टू स्क्वायर ऑफ. यहाँ तक ओके? अब क्या होता है? आई टेल माई ब्रोकर, ब्रोकर कम व्हाट में बाय दीज शेयर्स, बाय दीज शेयर्स फॉर मी. अब ब्रोकर
कितने बजे से कितने बजे तक? 3:30 to 4 के बीच में ही is trying to buy the shares for me. And he happens to get the share at 900 rupees. या फिर चलो 850 rupees हो सकता है क्या? हाँ, the share has closed at 800 ना? What is the closing market price? Everyone? 800. Auction market में generally महंगा मिलेगा, but महंगा as compared to closing price मिलेगा generally. ब्रोकर को मिल गया at 850. I am very happy. I am dancing. Why? Why am I happy? नुकसान हुआ क्या? ओरिजिनल केस में नुकसान हुआ था क्या मुझे? ओरिजिनल केस में when I had sold at 990 and I was able to buy it back at 1050. ओरिजिनल केस में लॉस हुआ था? yes or no? yes. इस केस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. कितने रुपीस का? how 140? 990 minus 850. आ रही क्या बात समझ में? ये पूरा खत्म हो गया. ये लास्ट बेंच. हाँ, तूच काहीच झेपत नाही है ना? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा. हाँ, you have lost the track. I know that. Try to grasp it. What has happened? I have sold at 990 per share. यहाँ तक okay? The share price closed today at 800. Did I square off? Yes or no? No, I forgot. Or there were no buyers, there were no sellers, or I did it from a different account. Whatever is the possibility. End result is I was not able to square off. Now who transacts on my behalf? My broker. कितने बजे से कितने बजे तक? From 3:30 to 4. Broker will enter the ring on my behalf. And broker says, बधाई हो, I was able to buy the share at 850. So what has happened? Effectively what has happened? I sold at 990. I was able to buy it back at 850. I am at 140 rupees profit per share. So auction में भी profit हो गया. I said, wow. ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था. When we were doing articleship, and articleship के बाद I joined the same firm as an employee. At that time, my junior was still doing his articleship there. So we are always during tea time we used to discuss. And we used to say, whenever we used to hear someone that friend has got loss, then we used to be happy. Yes, he's in loss. It's not only me who is in losses. Everyone is in loss. Then अच्छा लगता है थोड़ा सा. Okay. So I told you that मेरा share auction हो गया था. Everyone was very happy at that time because I had just become a CA and everyone said very good. ऐसे चाहिए तेरे को. हम नहीं पास हुए तो पास हुए. ऐसे चाहिए तेरे को. Okay, so they were very happy. In the meantime, within next 2 to 3 months, what happened? A very similar situation happened with one of my junior. Very similar. Sold at 990, got back in the auction market at 850. He said, "This is what I am. This is why I am best. I am the best investor." तेरी कुछ हुआ नहीं है. तेरे को बाय लक मिल गया है. उसमें उसका कुछ दिमाग है क्या? बाय लक मिल गया ना. मैंने कहा ठीक है अभी क्या तेरा लक अच्छा है चलो छोड़ो. बहुत जलन हो रही थी सबको. बट ठीक है अभी छोड़ो क्या करेंगे. नेक्स्ट डे ही सेड यार पैसा नहीं आया रचना. ऐसे T+2 आएगा यार डोंट वरी. नेक्स्ट डे पैसा आया ही नहीं उसको. 3 दिन 4 दिन 1 week he didn't receive money. He called the broker. अरे broker, I have got 140 rupees profit per share. Where is my money? He said, what money? He said, अरे auction market में I earned profit ना. Where is my money? Give me. No, I'll not give it back to you. हो गया पैसा. Where? IEPF. IEPF, Investor Education Protection Fund. This comes in CA curriculum. Investor Education Protection Fund. This is the fund which is created by SEBI again. SEBI बोलता है auction में profit हुआ, very good. इधर why? Because I feel the logic is that if your share has been auctioned, means you have done something wrong. Okay, because of a wrongdoing you should not profit. Because of a wrongdoing you should be penalized. You should not be profiting from a wrongdoing. So if you are getting a profit, very good, give it to us. It's a wrongdoing means, see, wrongdoing means I'm not saying ethical wrongdoing or something like that. It's not, I'm not talking about ethics. It means that you sold, it's like a dishonor, na? What is the end result? It's like a dishonor. You sold, but you don't have anything to sell.
something like that, na? You have sold, but you don't have anything to sell. Yes, that is why. Be very careful while doing a short sale. If you are doing a short sale, be sure that you are covering it up. If you are not covering it up, be ready for a penalty. So what I do generally is that whenever I do a short sale, I do a short sale of something which I already have. That's the safest way to do a short sale. 1% you are not able to cover it up, what will you do? Apne shares de do, no problem. So you are not in a tension zone at all. Is this okay? Still you have a doubt, huh? So again, technically speaking, so what is he saying? That ma'am, aapka kaise tha? So for Rachna, I had demat accounts, 2 demat accounts, Anand Rathi and Edelweiss. So right now I told you that not practically, I mean not ethically, but with some jugaad, shares can be transferred from year to year and sold off. He is saying that, ma'am, agar aise ho sakta hai kya, that in his demat account, he has few shares. He has shares of Bharti Airtel. What is he saying? Do one thing, na? Take it from me and then sell it off. Are you getting my point? Now how can I take shares from him? For that, if you remember, I told you this is known as off-market transfer. ऐसे बोला है क्या मैंने? नहीं बोला है. अच्छा, वो मैंने शायद physical form का आपको बोला था, that you have to go to the broker, you have to fill up a form. वो वाला. So off-market, इसको हम बोलते हैं off-market transfer. The word itself says, एक बार फिर से ध्यान से क्या बोलना? Off market transfer. Let's go through one by one. Is it a transfer of shares? Is it a transfer shares? Yes. Are you doing it in the market hours? Through the market? It's not through the market. It is off the market. Outside the market. You are transferring shares. कैसे होता है? Share transfer form होता है. Listen. So share transfer form होता है. Share transfer form भरना पड़ेगा. You'll have to give to the broker. Broker gives it to the company. अरे आज delivery देना है. So this is possible, but not in such a short span of time. Short sale में ये possible नहीं होगा. It's not like तुमने transfer किया, मेरे को मिल गया, very good, अब मैं यही दे देती हूँ. This is not possible. If you are talking about transfer of shares, transmission of shares जो death के बाद होता है, insolvency के बाद होता है, this takes time. Because as I said, filling up the form, given to the broker, to the company, almost maybe 1 week at least time चला जाएगा. So this is not possible for short sale, auction market. Okay till here? पक्का? बहुत भारी concept था आज का. No. One minute. The question that she is asking is that I have 2 brokers, Anand Rathi, Edelweiss. बेचा कहाँ से था? Anand Rathi से बेचा था. Where do I have the shares? In Edelweiss. She is saying that if I, with some jugaad, if I transfer the shares from here to here, okay, then does my order go in aftermarket hours? Does my share get auctioned? Question is, do my shares get auctioned? No. Why? I have given the delivery of shares. Baat khatam. Aftermarket nahi na, because see, it's not something like this कि 3:30 my broker immediately has to give the shares. वो पूरा settlement करना होता है ना broker. How much time does broker have to do all these things? That is why we have T+2 ना. These 2 days are for the admin process. कि इधर से शेयर्स लेके क्लियरिंग हाउस से वो जाके फिर बायर के पास ब्रोकर जाके फिर बायर का ब्रोकर ट्रांसफरिंग टू द ब्रोकर, दैट वी रिक्वायर 2 days. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑक्शन का संबंध ही नहीं आएगा इस केस में. विल माई ब्रोकर गिव द डिलीवरी ऑफ शेयर्स? यस, दैट इज द सिनेरियो. ओके, वाओ, दिस इज द फर्स्ट डे व्हिच आई गॉट सो मेनी डाउट्स. ही इज सेइंग आई एम स्टिल मैड. आ रहा है कि नहीं समझ में आज थोड़ा? अब ऑक्शन का थोड़ा, what we will do is, I personally feel tomorrow I'll again quickly in first 10 minutes, because we have not even written anything right now, na? Have you written about short sale concept? No?
at least short sale will write. Just 2-3 more minutes and then we'll stop. Okay, write down the concept of short sale. Short sale. It is a trade. It is a trade where a trader, it is a trade where a trader क्या करेगा? Trader sells first. Trader sells first and buys later. Trader sells first and buys later. Short sale is, अच्छा हमने short sale का ही लिख रहे हैं ना हम basically. Okay, so short sale is preferred by traders. Short sale is preferred by traders if they are dash about the market, bearish about the market, okay. So that is the concept of short sale. Just leave one line and write down auction, shares auction. Shares auction. फटाफट बोलो शेयर ऑक्शन में क्या होने वाला है? If a person does a short sale, if a person does a short sale and does not square off his position, if a person does a short sale and does not square off his position, then what happens? Then his shares are auctioned. Then his shares are auctioned. Who can participate in the auction market? Tell me. Yes. So just one more line. Brokers participate in the auction market. Brokers participate in the auction market. टाइमिंग बोलो उसका फ्रॉम 3:30 to 4. On behalf of their customer, on behalf of their client, on behalf of their client. वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखेंगे. Any loss, listen, what are we going to write? Any loss because of such transaction occurring because of such transaction is to be borne by the short seller, basically by the short seller, but any profit will be transferred to IEPF. Okay, so just one last line. Any loss arising due to such a transaction, any loss arising due to such a transaction will be borne by the con short seller, and any profit will be क्या होगा? Will be transferred to IEPF. Is this okay? Right? आज भी बहुत ज़्यादा terms पढ़े. Types of orders and this auction, stop loss, all this we have learnt. Tomorrow what we'll do is first 10 minutes again we'll revise this. वैसे तो हम revise करते ही है. आज अपना revision रह गया है थोड़ा सा, but it's okay. आज बहुत heavy हो गया ना. Lots of terms we discussed today. So tomorrow we'll do the revision also, and we'll also talk about all these concepts. Okay? Bye-bye.